پہلگام فالس فلیگ واقعے کی ہندوستانی پولیس اسٹیشن میں دائر ایف آئی آر نے مودی حکومت کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ایف آئی آر نے حملے کو مشکوک بنا دیا۔ پہلگام پولیس اسٹیشن جائے وقوع سے 6 کلومیٹر دوری پر ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق پہلگام حملہ 1:30 سے 2:20 تک جاری رہا۔ حیران کن طور پر صرف 10 منٹ میں 2:30 پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر درج ہونا پہلے سے بنے بنائے منصوبے کا اشارہ دیتی ہے۔ ایف آئی آر میں پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت نامعلوم سرحد پار دہشت گرد نامزد بھی ہو جاتے ہیں۔ ایف آئی آر کہتی ہے کہ مبینہ دہشت گردوں کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی، جبکہ بھارتی حکومت اور میڈیا اسے ٹارگٹ کلنگ کا جھوٹا راگ الاپتا رہا۔ ایف آئی آر کے مطابق مودی حکومت کا پہلگام فالس فلیگ کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے اور بھونڈا ڈرامہ بری طرح بے نقاب بھی ہو چکا ہے۔ ایف آئی آر میں جھوٹ پکڑے جانے کے بعد مودی کا پہلگام فالس فلیگ ڈرامہ صرف ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ بھارتی انتہا پسندوں نے اپنے قومی ہیرو کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ ارشد ندیم کو دعوت دینے پر انتہا پسند بھارتی اپنے قومی ہیرو کو برا کہنے لگے۔ نیرج چوپڑا کا بھی انتہا پسندوں کو منہ توڑ جواب۔ انڈیا کے جیولن سٹار نیرج چوپڑا نے کہا ہے کہ انہیں اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو بھارت کے ٹورنامنٹ میں مدعو کرنے پر نفرت انگیز رویے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایکس پر پیغام میں نیرج چوپڑا نے کہا ہے کہ انہوں نے اگلے ماہ ہونے والے نیرج چوپڑا کلاسک جیولن ٹورنامنٹ میں ارشد ندیم کو مدعو کیا تھا۔ ارشد ندیم کو مدعو کرنے کے ان کے فیصلے پر انڈیا میں کئی لوگوں نے ان کے خاندان کے خلاف بد زبانی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کم بولتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی غلط چیز پر آواز نہیں اٹھاؤں گا، خاص کر جب کوئی میری محب الوطنی اور میرے خاندان کے عزت اور احترام پر سوال اٹھائے۔ میں نے ارشد ندیم کو جو دعوت نامہ دیا تھا وہ ایک کھلاڑی کا دوسرے کھلاڑی کے لیے تھا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ غزہ کے قاتل اور گجرات کے قصاب کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق حالیہ دنوں میں ہونے والے پہلگام حملے کا پس پردہ وہ مقصد بھارت میں جنگی جنون کو ہوا دینا اور پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر دباؤ بڑھانا تھا۔ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار سری نگر مقبوضہ جموں کشمیر میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اہلکار جدید تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان اسرائیلی اہلکاروں کی مقبوضہ کشمیر میں موجودگی نہ صرف باعث تشویش ہے بلکہ یہ پاکستان کے خلاف جاری مذموم مہم جوئی کو سہولت فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا حملہ ہوا، ہم سب نے مذمت کی۔ اس بار بھارت کی طرف سے سندھو پر حملہ ہوا، بھارت نے پاکستان پر الزامات لگائے، اپنے عوام کو بے وقوف بنایا۔ بھارت نے الزامات لگائے کہ دہشت گردی میں پاکستان ملوث ہے۔ بھارت نے یک طرفہ فیصلہ کر کے پاکستان کا پانی بند کرنے کا اعلان کیا۔ بھارت کے عوام، پاکستان، بین الاقوامی ممالک بھارتی فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ ہم سندھو دریا کے وارث اور محافظ ہیں، ہم اس کا تحفظ کریں گے۔ پاکستان کے 4 صوبے 4 بھائی ہیں، مل کر بھارت کا مقابلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سوچ میں ہر پالیسی پر ہم آہنگی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم کو یقین دلاتا ہوں بھارت کے خلاف ہم حکومت کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ تھا، ہم سب نے اس دہشت گردی کا واقعہ کا مذمت کی۔ بھارت نے اپنا کمزوریاں چھپانے کے لیے، اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے مودی نے پاکستان کو جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگائے ہیں کہ یہ اس دہشت گردی کے واقعہ کے پیچھے ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ ان کا یک طرفہ فیصلہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جو معاہدہ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس کے تحت بھارت یہ مان چکا کہ سندھو آپ کا ہے، سندھو پاکستان کا ہے۔ بھارت کو کہنا چاہوں گا کہ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا، یا اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا۔ پہلگام واقعے پر بھارتی اقدامات کے خلاف سینٹ سے قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد کے مطابق حملے سے پاکستان کو جوڑنے کی کوششیں مسترد کرتے ہیں۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کھلی جارحت ہے۔ قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج اور قیادت ہر قسم کی جارحت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم آنکھ ہی نکال دیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارتی اقدامات کے جواب میں واہگہ بارڈر کو فوری بند کرنے کا فیصلہ
فیصلہ کیا سارک ویزے پر پاکستان میں موجود بھارتی شہری 48 گھنٹے میں پاکستان چھوڑ دیں، تاہم سکھ یاتریوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی جنگی اقدام ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی زندگی سے جڑا ہے۔ پاکستان ایٹمی قوت ہے جو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی وزیر خارجہ سے ان کی خواہش پر گفتگو طے ہوئی ہے۔ کسی قسم کی ایڈونچرزم کا کسی کو خام خیالی ہے تو وہ بھول جائے۔ پاکستان کی آرم فورسز پوری طرح تیار ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہماری طرف کو میلی آنکھ سے کوئی کوشش کی تو اس کو جواب اسی طرح ملے گا جیسے ان کو ماضی میں جواب ملا تھا۔ پہلا جو وار کیا ہمارے اوپر تو وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو ڈکلیئر کیا، اس کو انابیس کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے پانی کہ واگا بارڈر جو ہے وہ اس کو فوری طور کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ جو لوگ کراس بارڈر کر کے ادھر آئے ہوئے ہیں انڈیا سے وہ 30 اپریل 2025 تک واپس چلے جائیں کہ وہ تمام لوگ جو سارک ویزے کے اوپر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں انڈینز وہ 48 گھنٹے کے سینٹ میں پہلگام واقعے پر بھارتی وویلا مسترد شبلی فراز نے کہا پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگا دیا۔ بھارت ہمیشہ طاق میں رہا کہ پاکستان کو کیسے نقصان پہنچایا جائے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے۔ کلبھوشن اس کی زندہ مثال ہے۔ دشمن کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شیری رحمان کا کہنا تھا پہلگام واقعہ قابل مذمت۔ بھارت خود دہشت گردوں کو سپانسر کرتا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے۔ ساری جماعتوں سے مل کر بھارت کو پیغام دیا ہے۔ پاکستان پر بھارتی الزامات افسوسناک ہیں۔ ملولی خان بولے پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت ہم سب کے لیے مقدم ہے۔ جب بھی ملک کی بات ہوگی تو ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے نہروں کا معاملہ جیت لیا، انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ اس طاق میں رہے کہ کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ ان کی یہ خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اگر پاکستان کا کوئی سرونگ ملٹری آفیسر وہاں جاسوسی کرتے پکڑا جاتا، انہوں نے بینڈ بجا دینا تھا، سر پہ اٹھا دینا تھا، ہم یہ اٹیک کریں گے، ہم وہ حملہ کریں گے۔ ارے بابا، آپ نے ٹیسٹ کر لیا نا پلوامہ میں، چائے پی لی نا پاکستان کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ کسی ایک شخصیت میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اگر حکومت بانی پیٹائی کو رہا کرتی ہے تو سر آنکھوں پر، ورنہ پارٹی تو ہے۔ حکومت کو نہیں کہا چاہیے کہ ہم بانی پیٹائی کو نہیں بلائیں گے، تحریک انصاف کو نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نہیں آئیں گے۔ پہلگام میں جو وقوع ہوا ہے، پاکستان نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو واقع حادثات کوئی کرتا ہے وہ قابل تحسین نہیں ہوا کرتے، لیکن اس معاملے کو گھمبیر بنایا ہے انڈین گورنمنٹ یا ان کے پرائم منسٹر مودی، انہوں نے اس کو گھمبیر بنا دیا ہے، اور انہوں نے اس کا رد عمل کچھ اس طرح سے دیا ہے جیسے کہ 5 منٹ کے اندر انہوں نے پاکستان کو بھی نامزد کر دیا، 5 منٹ کے اندر انہوں نے حملہ آوروں کو بھی نامزد کر دیا، اور 5-10 منٹ کے اندر FIR بھی۔ اس نے خود انڈیا کی پوزیشن انتہائی مشکوک بنا دی ہے۔ پہلے دن سے یقین تھا کہ نہریں نہیں بنیں گی۔ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سندھ کے پانی پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا صدر مملکت کی 8 جولائی کی میٹنگ یا ایوان صدر کا کوئی ٹویٹ ہمارے لیے تشویش کا باعث نہیں، کیونکہ ہماری منظوری کا مینڈیٹ صرف باہمی رضامندی سے ممکن ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی کالا باغ ڈیم یا کسی بھی ایسی اسکیم کی حمایت نہیں کی جس سے سندھ کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا موقف بھی ہمیشہ کشمیر اور سندھ کے حق میں رہا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کی اہم میٹنگ 2 مئی کو ہوگی۔ سندھ کے پانی کے حقوق کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ جن کو خدشہ تھا کہ نہریں بند تو نہیں جائیں گی، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہ خدشہ ہمیں دور کرنا ہے۔ میں بڑا کانفیڈنٹ تھا، میں نے ہر جگہ پہ، میں نے ابھی 3 دن پہلے بھی کہا تھا گارنٹی میں دیتا ہوں نہیں بنیں گی۔ 8 تاریخ کو وہ ٹویٹ ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے،
सदर चीफ मिनिस्टर हाउस का ट्विटर मैं नहीं चलाता हूँ, ज़रूर कोई ना कोई एम्प्लॉई चलाता होगा, गलतियाँ भी करता है। कई बार इधर बैठे मैं कहता हूँ भाई ये तुमने क्या कर दी, चली गई होती है, फिर वो लोगों के स्क्रीनशॉट हो जाते हैं, तो फिर उस पर 8 तारीख को वो ट्वीट हुई है, उसके बाद 9 और 10 को कुछ और भी उसमें ट्वीट किए। 10 जुलाई के बाद उसने कभी मुंह नहीं खोला उस ट्विटर अकाउंट ने। जब कालाबाग की शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा ना, इधर से शुरू हुई थी बात कि इत्तेफाक राय नहीं होगा तो कालाबाग नहीं बनेगा, और सिंध का ये मौक़िफ़ था कि भाई हम तो कभी इत्तेफाक नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था। हाँ, कुछ और जमातें थी जो कालाबाग डैम के फेवर में जुलूस जलसे भी करती थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी वक्त ये नहीं कहा कि किसी भी जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते थे कि मैं ख्वाब में नींद में भी कश्मीर के बारे में गलत फैसला नहीं कर सकता, हम सोते हुए भी सिंध के हुकूक के बारे में गलत फैसला नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि शुक्र है नहरों के मामले पर 2 सियासी ड्रामा पार्टीज की नूरा कुश्ती फिलहाल खत्म हुई। मुश्तरका मफादात काउंसिल में खैबर पख्तूनख्वा के चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कैनाल मंसूबे को नए नहरी मंसूबों से नत्थी करने से गुरेज किया जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि चश्मा राइट बैंक कैनाल की मंजूरी 1991 में मुश्तरका मफादात काउंसिल ने दी थी। मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले की रोशनी में तीनों सूबों में नहरें निकाली गईं, ताहम खैबर पख्तूनख्वा में ताहाल इस मंसूबे पर अमल दरामद नहीं हो सका। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमएल वली खान का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने शर्मनाक हरकत की है। भारत की इस हरकत के बाद पाकिस्तान ने शिमला मुआहदा मुअत्तल करके भरपूर जवाब दिया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर किसी को सवाल उठाने की इजाज़त नहीं देगा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए एमएल वली खान का कहना था कि हम भारत और अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, लेकिन दोगलापन नाकाबिल कबूल है। उन्होंने सवाल उठाया कि वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है तो करतारपुर राहदारी क्यों खुली है, क्या भारत ने पाकिस्तानी मुसलमानों को अजमेर शरीफ जाने की इजाजत दी है। एमएल वली खान का कहना था कि अगर बॉर्डर बंद करने हैं तो सबके लिए एक ही पॉलिसी होनी चाहिए, वरना किसी के लिए भी नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सऊदी हम मनसब का टेलीफोन। दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी फैसलों से आगाह किया। नायब वज़ीर खारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। नायब वज़ीर आज़म ने भारत को मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहने का इंतबाह दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, जिसमें भारत के पहलगाम वाक़े के बाद के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के तनाजुर में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने सदर आसिफ अली जरदारी को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के बारे में आगाह किया, जिसके बाद सदर ने कौमी सलामती कमेटी की जानिब से भारत के इक़दामात के जवाब में किए गए जवाबी फैसलों को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कौमी सलामती कमेटी के फैसले कौम की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं और पूरा मुल्क इन फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ा है। उन्होंने भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इक़दामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि दुश्मन को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि भारत ने पहलगाम का झूठा ड्रामा रचाया। भारतीय सहाफ़ी शोर कर रहे हैं कि आलमी सतह पर इन्हें कोई पूछ नहीं रहा। भारत ने पहलगाम वाक़े को आलमी वाक़या बनाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया सच जानती है मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। वाक़े की FIR सामने आने पर भारत का झूठ बेनकाब हो चुका। भारत ने वाक़े के 10 मिनट बाद ही FIR दर्ज करा ली थी। बगैर तहक़ीक़ात के FIR दर्ज की गई, ये इक़दाम मज़ाक़खेज़ है। पाकिस्तान की एयर स्पेस को इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया गया, करके दिखाया कि हमने इनके साथ ट्रेड बंद की। इस वक्त भारत के अंदर ये सूरत हाल है, एयरलाइन टिकट्स की कीमत 12% ऊपर जा चुकी। पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है, मगर किसी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देना पाकिस्तान जानता है। तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इस हवाले से भारत की दिन ब दिन सुबकी हो रही है बैनुल अक़वामी सतह पे। और इस वक्त भारतीय जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पे रोना रो रहे हैं कि जी भारत का नैरेटिव नहीं चल रहा। जो पहलगाम वाक़े की FIR दी गई, वाक़या ख़त्म होने के 10 मिनट के अंदर FIR भाई तहकीकात होती हैं, एविडेंस गैदरिंग होती है, मौके का मुलाहिज़ा किया जाता है, कानूनी लवाजमात पूरे किए जाते हैं और उसके बाद FIR दी जाती है।
सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने ABN न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मोदी जब वज़ीर आला था तो गुजरात में उसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, फ़िरक़ा वारियत पर वहाँ सियासत की गई। आज एक बार फिर वो अपने ज़हनियत का मुज़ाहरा कर रहा है। हिंदू मुस्लिम फसादात करा के भारत पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश में अपने आप को बेनकाब कर रहा है और दुनिया में इस वक्त उसका पर्दा चाक हो चुका है। मोदी बज़ात खुद जब ये वज़ीर आला था गुजरात का तो उस वक्त भी उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था और मुजरिम गुजरात मुतारफ़ हुआ। उसने फ़िरक़ा वारियत की बुनियाद पर वहाँ सियासत की, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के सामने खड़ा करने की, और आज एक बार फिर वो अपनी उस ज़हनियत का मुज़ाहरा कर रहा है कि किसी तरीके से वो हिंदू मुस्लिम फसादात करवा के और पाकिस्तान इंडिया के मसले को से वो हिंदू मुस्लिम का फ़ायदा उठा के अपने वोट बैंक में इजाफे की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन 40 दो तरफा मुआहदे तय पाए। शिमला और जौहरी और अस्करी नौयत के मुआहदे अहमियत के हामिल हैं। अहम मुआहदात की मुकम्मल तफसीलात इस वक्त सामने आ चुकी हैं। देखेंगे ABN न्यूज़ की इस रिपोर्ट में। पहलगाम हमला, पाक इंडिया ताल्लुकात कशीदा, हिंदुस्तान की जानिब से अटारी सरहद बंद, विज़ों पर पाबंदी, सिंध तास मुआहदा मनसूख कर दिया गया। जवाबन पाकिस्तान ने भी दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने के साथ साथ फ़ज़ाई हुदूद और वहगा सरहद बंद करने के बाद सफारती ताल्लुकात भी मुनक़ते किए। तारीखी तौर पर दोनों ममालिक के माबैन तिजारत, जोहरी हथियारों, सरहदी उमूर, सिक्योरिटी और जोहरी तजर्बात से मुताल्लिक 40 दो तरफा मुआहदे हुए। अहम दो तरफा मुआहदों में शिमला मुआहदा 1971 की जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की तरफ एक अहम कदम समझा जाता है, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात का पुरअमन तस्फिया, इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम, सियासी आज़ादी और दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत का एहतराम करना शामिल था। एक और दो तरफा अहम मुआहदा जोहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमले की मुमानियत का है, जिसके तहत दोनों ममालिक ने एक दूसरे की जोहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमला या तबाह न करने पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त लाहौर एलामिया है जो 21 फरवरी 1999 को तय पाया, जिसके तहत जोहरी तसादम के खतरे को कम करने और जोहरी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सिंध तास मुआहदा 1960 में तय पाया, जिसके तहत इंडिया को ब्यास, रावी और दरियाई सतलुज के पानी पर मुकम्मल, जबकि पाकिस्तान को 3 मगरबी दरियाओं सिंध, चिनाब और जेहलम के पानी पर इख्तियार दिया गया था। ताहम इन दरियाओं के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद के मुताबिक ऐसे मुआहदे जिनके सालिस आलमी इदारे या ताकतें हों तो ऐसे मुआहदों में यक तरफा तब्दीली या मुदाखलत इतनी आसानी से नहीं की जा सकती। पाकिस्तान पहले ही वाज़े कर चुका है कि पानी के बहाव में कमी को जंगी अक़दाम तस्वुर किया जाएगा। अहम मुआहदात की मुअत्तली के देर पा असरात हो सकते हैं। आलमी बरादरी कभी नहीं चाहेगी कि दो न्यूक्लियर ममालिक के ताल्लुकात में ज्यादा खराबी पैदा हो और वो इस नहज तक पहुँचें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुतादिद इलाकों में पाक फौज के हक और भारत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गईं, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि भारत ने जारहियत की कोशिश की तो इसे पाक फौज दंदान शिकन जवाब देगी। आज़ाद कश्मीर के दाल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा के नाम से रैली का इनेकाद। रैली में स्कूलों के बच्चों और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मेंबर कानून साज असम्बली का कहना था कि भारत झूठे प्रोपेगेंडे करने से बाज रहे, हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ बाग में भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। भारतीय आबी जारियत और इसाली बर्बरियत के खिलाफ रैलियों के हवाले से लाहौर में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, मसाजिद, इमाम बारगाहों में दाखिले से कबल मुकम्मल तलाशी के बाद दाखिल होने की इजाजत, जबकि रैलियों के शुरा पर भी कड़ी नजर रखने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद झूठा प्रोपेगेंडा करके इल्जामात लगाए हैं और सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है और ये खुली आबी जारियत है। ये इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पानी की जंग मुसल्लत करना चाहता है। वो ये हमेशा से ये इस तरह के फॉल्स जो फ्लैग ऑपरेशन करके ये पाकिस्तान के ऊपर
इल्जाम लगाता है, तो इस दफा उसको पता होना चाहिए, ये तो उसकी ऐसे ही गिदड़ बतियां हैं। पाक भारत कशीदगी के हवाले से फैसलाबाद के शहरियों का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान इंडिया के किसी भी तरह की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी और सिंध तास मुआहदा खत्म करने के खिलाफ मुल्तान में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से जुम्मा की नमाज के बाद एहतजाज और रैलियों का इनेकाद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। भारत की जानिब से पहलगाम ड्रामा रचाने के बाद पाकिस्तान को दी जाने वाली धमकियों के खिलाफ और पाक फौज के हक में हजीरा में दूसरे रोज भी रैली निकाली गई। भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। हुकूमत पाकिस्तान और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज बरतानिया के माबैन अल्लामा इकबाल विजिटिंग फेलोशिप के क़याम के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। मफाहमती यादाश्त का मकसद तारीखी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल विजिटिंग फेलोशिप का क़याम है। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वजारत तालीम और पेशा वाराना तरबियत, हुकूमत पाकिस्तान की और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के माबैन अहम मफाहमती यादाश्त की तकरीब में शिरकत की। हाई कमिश्नर का कहना था कि अल्लामा इकबाल की पाकिस्तान की तारीख, अदब और फ़लसफ़े में खिदमत बेमिसाल है। अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का फ़िक्री बानी तस्वुर किया जाता है। मफाहमती यादाश्त हमारी उस कोशिश का अहम संग मील है जिसका मकसद पाकिस्तान के भरपूर सक़ाफ़ती, अदबी और इल्मी विरसे को फ़रोग़ देना है। इस इक़दाम से यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और पाकिस्तान में आला तदरीसी इदारों के दरमियान बाहमी हम आहंगी और ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। अल्लामा इकबाल विजिटिंग फेलोशिप के तहत हुकूमत पाकिस्तान मुमताज़ माहिरीन तालीम को नामजद करेगी, जिनमें से एक को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ विजिटिंग फेलो के तौर पर मुंतखब करेगा। मैनचेस्टर के मुकामी रेस्टोरेंट में बरतानिया की कारोबारी शख्सियत बिलाल गफूर की जानिब से कम्युनिटी ईद पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें ग्रेटर मैनचेस्टर से बिजनेस कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का अहवाल मैनचेस्टर से इसहाक चौधरी की रिपोर्ट में देखते हैं। बरतानिया के बिजनेसमैन बिलाल गफूर की जानिब से मैनचेस्टर के मकामी रेस्टोरेंट में ईद पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मैनचेस्टर और गिरदोनवा से बिजनेस कम्युनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए बिलाल गफूर ने कहा कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी बरतानिया और पाकिस्तान की माशत में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और हाजी अब्दुल गफूर के नए बिजनेस वेंचर पर मसरत का इज़हार किया। तकरीब में शरीक हाजी अब्दुल गफूर, अब्दुल कयूम, उस्मान तारिक मलक, इब्रार कियानी, शोएब ताज, नवाज गोंदल और दीगर ने इज़हार ख्याल करते हुए नए बिजनेस वेंचर पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे सारे मेहमानों का, जिनसे आए। कुछ हफ्ते पहले ईद भी हुई थी, तो इस वजह से हम पार्टी देना चाह रहे थे। साथ हमने आज अनाउंस किया है कि नवाब में हाजी साहब और क्यूम साहब इन्वेस्टर्स हैं और अबरार साहब भी इसको रन कर रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, इसमें पार्टनर हैं। उसके अलावा शोएब साहब में भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी बड़ा काम किया है। और सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जैसे आज आएँ, और बड़े बड़े दूर से हमारे लंदन से भी मेहमान आए, स्कॉटलैंड से भी आए, यॉर्कशायर से आए, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ और बैकग्राउंड बिजनेसमैन, और सारों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। माई नवाब में बिलाल गफूर, अब्दुल गफूर और अब्दुल क्यूम साहब की तरफ से ये एक डिनर का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पे कम्युनिटी के एक कसीर तादाद यहाँ पे जमा हुई है। ये ईद और रमज़ान के बाद भी है। माशाल्लाह सारा सबको एक मौका मिला है इकट्ठे होने का। माशाल्लाह इनके बिजनेस वेंचर भी साथ इनके कलेक्टिवली चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप विश देम लक टू ऑल पार्टीज। कम्युनिटी के सरकर्दा मेम्बरान की तरफ से, जिसमें मैनचेस्टर के बिजनेसमैन जो हैं या दूसरी जो इज़्ज़तदार लोग हैं, उन्होंने सब ने शिरकत की है, तो सब ने बड़ा अच्छा एंजॉय किया है। ऐसे फंक्शन जो हैं ये अमूमन अरेंज होने चाहिए, इनमें लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। ये बड़ा अच्छा इवेंट था। आई विश ऑल द बेस्ट टू बी ऑर्गेनाइज्ड। शुरा ने ऐसी तकरीबात को कम्युनिटी के मिल बैठने और तबादला ख्याल करने का जरिया करार दिया। इसहाक चौधरी, ABN न्यूज़, मैनचेस्टर। ब्रैडफोर्ड काउंसिलेट में यौम यकजहती पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फौज से इज़हार यकजहती करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मजीद तफसीलात काजी कामरान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के कौंसलेट ब्रैडफोर्ड में यौम यकजहती पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और हुकूमत के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया।
तकरीब में कौंसल जनरल ब्रैडफोर्ड जाहिद अहमद जतोई और शुरका ने सियाहती मकाम पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना वाक़ये की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान का पैगाम अमन है, मगर इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम एटमी ताकत है। अगर मोदी को जंग का शौक है तो हम उसे नाकों चने चबवा देंगे। हम दुनिया में कहीं भी होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं और दुनिया को ये चीज़ ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम है। हम दहशतगर्दी के परपेट्रेटर्स नहीं हैं, जिस तरह के हमारे मुखालिफ भारत और दीगर बैनुल-अक़वामी मीडिया हमें पोर्ट्रे करता है। तो ये पैगाम हमारी तरफ से एक यकजहती का पैगाम था कि पाकिस्तानी ख्वाह कहीं भी बसते हों, उनके आपस में सियासी नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान के दिफा की बात आएगी, पाकिस्तान की बका की बात आएगी, जहाँ पाकिस्तान को कोई चैलेंज अंदरूनी या बैरूनी दरपेश होगा, पाकिस्तानी कौम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम लोग जो है कोई पाकिस्तान कोई तरने वाला नहीं है, पाकिस्तान कोई छोटा मोटा कमज़ोर मुल्क ना समझे पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक सातवीं बड़ी एटमी ताकत है और पाकिस्तान के अवाम बहादुर हैं और इंशाल्लाह हम खून के आखिरी कतरे तक अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ेंगे, इसके चप्पे चप्पे का दफा करेंगे और मोदी जैसे जो टेररिस्ट हैं या कोई भी बड़ी की बड़ी जो ताकत है, हम उनसे घबराने वाले नहीं। पाकिस्तान हमेशा रहेगा ताक़यामत और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंशाल्लाह पाक फौज और अपने मुल्क की दफा के लिए हर मुश्किल वक्त में हम अपने मुल्क की अपनी हुकूमत और अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। And the foreign forces must not interfere in Pakistan's affairs.